Good morning. I am Dr. Anil Tyagi. You all doctors of optometry are welcome to the channel The Passionate Fighter for Freedom of Optometry India. You watched my last video, the conversations between the Legislative Committee of DO and the team of the Supreme Court lawyers regarding the filing the litigations, PIL, and challenging the schedule ophthalmic science and replace it with the optometry councils under the National Commission Allied Healthcare Profession Act 2021. Now, the committee of the executive body of DO has taken decisions last week, 21st July, and they decided we have to talk, we have to fix the meeting with all the esteemed registered associations regarding the optometry professionals, with the leaders, and we can convey what is the current scenario, what is the current status of optometry, what the benefit of the optometry councils, and what are the negative consequences of ophthalmic sciences, which has been established under the schedule to ophthalmic science instead of optometry. You know very well optometry worldwide established as independent professions and autonomous, but somehow technically, deliberately, intentionally, some our professionals enemy, you can say enemy, are not interesting to establish the optometry independent. So decisions has been taken, the executive committee board, after the conversation of the Supreme Court lawyer teams on 18 July 2025. Now, what the process have been taken for the optometry councils under the PIL? How many associations are being participating, and how many associations are interested to have the optometry councils instead of ophthalmic science? DO fixed a Zoom meetings with all the esteemed association leaders, president, secretary, or nominated members on 3rd August 2025 at 10 o'clock onwards. You just go and watch the video. Video is self-explanatory. What is the current status of the optometry and what the current position of our case, how it can be beneficial. Please go and watch the video. Thank you. So that all has been explained very well by Kanika ma'am, and who is going to appear for the first council, second council, and the main AOR करके. And after that duration का तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि it depends upon how the Supreme Court का availability of the date and availability of the bench of the judges. And as per that, it will go on. So we don't know the duration, but yes, filing documentation can be done. Only एक लूपहोल था कि हमने आज तक 4 साल में किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट ने पूरे इंडिया से इनको रेज नहीं किया है. तो DO is the only association that I'm very happy to share that we are the only association would like to come extend this and raise our voices. Unfortunately, it is not very united. In a very small number we are representing, but still we are going on the right path. And yeah, so that answers, and that how to modify that if the Supreme Court answers the questions about it, why you are late in filing after the 4 years, like, you know. So that also we had some solution and discussion on that. And बाकी तो हम सोच रहे हैं कि और कोई लॉयर्स भी हमें मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है. तो अगर आप किसी के पास भी किसी का रेफरेंस होगा तो वी विल लाइक टू हैव इट दैट वी विल टॉक टू ईच लॉयर
and then the legislative committee and the president and secretary, we all will take a amicable decision in the interest of the filing the PIL and the seeing our amount also. Okay, what is the fund required, what DOA has a fund, and what we need to prepare ahead to fight till the case goes on. So we are not expecting less than 35 to 40 lakhs. That is what we thought of last time when we had a legislative committee meeting with a lawyer. So if any board member has any questions, please feel to ask us. We can answer on that. Thank you. अभी योगिता जी की बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं। अभी हमको दो बातें बड़ा समझना जरूरी है कि एडवोकेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनका प्रैक्टिस क्राइटेरिया कहाँ कहाँ पर होता है। ज्यादातर हम जैसे आई स्पेशलिस्ट हमारे होते हैं, तो हर आई स्पेशलिस्ट कॉर्नियल सर्जन नहीं हो सकता या रेटिनल सर्जन नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे लॉयर में एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक होता है हाई कोर्ट का, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर है वो हाई कोर्ट के लिए उसको सर्टेन पीरियड के लिए प्रैक्टिस के बाद उसको हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल होता है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या केस फाइल करने के लिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं उनको, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम लेती है एडवोकेट्स का, और उस एग्जाम को जो क्वालिफाई कर देता है उसकी एक लिस्टेड कर लेता है कि ये एडवोकेट आर एलिजिबल टू फाइल द लिटिगेशंस और हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। जो उसको पास नहीं कर पाता एडवोकेट, वो सिर्फ हाई कोर्ट तक ही होते हैं और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक होंगे। इसके साथ साथ एक एडवोकेट की जो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, एक आपका जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। ये जो हमारा मैटर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का है, ये सिविल या क्रिमिनल लॉयर का मैटर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्ट हैं, जो उसके अंदर आर्टिकल, सेक्शंस या जो भी उसकी धाराएं हैं, उसको एनालिसिस करके वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होते हैं, और वो बहुत हायर होते हैं। जैसे कपिल सिब्बल सर है, मनु सिंघवी सर है, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बोलते हैं जो PIL फाइल करते हैं। अब जो मैटर आता है कि हमारे केस के अंदर ARO यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को कोर्ट के अंदर रखेंगे। कोर्ट के अंदर रखने के लिए अपनी बात कह भी सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बिजी कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, उस पे इतने केसेस होते हैं कि वो हर केस को हियरिंग कर पाए या हर केस को सुने और उस जज साहब को आपकी अपनी बात को लॉयर कह सके, ये सभी लॉयर में कैपेबिलिटी नहीं होती। इसलिए ये बड़े हायर जो कॉन्स्टिट्यूशनल PIL फाइल करने वाले लॉयर्स होते हैं, उनकी हियरिंग की फीस कम से कम, जैसे अभी हमारे लॉयर ने बताया, 6 लाख रुपया पर हियरिंग की, पर डे की। पर हियरिंग का मतलब 10 मिनट है तो 10 मिनट, और अगर हियरिंग नहीं होती और डेट फिक्स है और जज साहब ने कुछ सुना नहीं तो हमको फीस उनका देना ही पड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने बोला कि 5 से 6 हियरिंग लगेंगी अगर हम सीनियर लॉयर्स को जो हमारे एप्लीकेशन को एडमिट कराए। पहला पॉइंट है एडमिट कराना, नोटिस इशू कराना। नंबर 2 पॉइंट पर आएगा जब हियरिंग की फाइनल जजमेंट होगा, तो जजमेंट के टाइम पर भी हमको फेस वैल्यू के एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। तो उन सारा प्रोसेस में जो बताया वो मैं आपको ब्रीफिंग बता देता हूं कि जिनसे हमारी बात हुई ये ARO के टीम में है, जूनियर लॉयर हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके एक फाइल बनाएंगे, केस बनाएंगे। फिर ARO और दूसरे कंसल्टेंट जो सीनियर, हम अगर किसी कंसल्टेंट को रखते हैं फेस वैल्यू को, उससे कंसल्ट कर कर फिर वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप और वो होंगे जब वो ARO के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस उसको एग्जामिन करते हैं कि टेक्निकली जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, रिक्वायर्ड ड्राफ्ट की कंटेंट्स है, वो
फुलफिल है तो वो आगे एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्शन में फाइल जाता है तो उसको फिर रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। यानी कि अभी रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, वो उस केस को एग्जामिन करते हैं कि क्या ये हियरिंग करने लायक है, क्या ये मैटर अंडर पीआईएल आता है, वो स्क्रूटनाइज करके फिर फर्दर आगे जाएगा। तो उसकी जब वो डेट मिलेगी नोटिस इशू करने के लिए, उस समय पर हमको सीनियर लॉयर रखना पड़ेगा, जिसके लिए 6 लाख रुपया पर डे का, पर हियरिंग का होगा। ये तो है उनका। प्लस जो एआरओ है वो 4.5 लाख रुपया उनका कंसल्टेशन फीस है, यानी डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, फाइल करने का, कोर्ट के अंदर उनके थ्रू फाइल जाएगी। यानी कि उनका वकालतनामा पे साइन हमारे लॉयर वो एआरओ ही करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को फाइल और डिबेट कर सकते हैं। उनकी सपोर्ट के लिए, अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एआरओ और लोकल लॉयर। तो ये जो हमारी मैडम है जिनसे बात हुई है, ये हाईकोर्ट की लोकल लॉयर हैं, ये एआरओ नहीं है, क्योंकि अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो एआरओ का एग्जाम पास करके एआरओ बन सकें। लेकिन एआरओ की टीम में है और उन्हीं के साथ एसोसिएट 2 एडवोकेट थे जिन्होंने वो बात की। तो ये चीज मेन पॉइंट है जो अभी योगिता जी ने बोला, वो 30 से 35 लाख इस पॉइंट पर है कि अगर हम मान लिया सिर्फ एआरओ की 4.5 लाख रुपया और प्लस डॉक्यूमेंटेशन को लगा के हमने कैलकुलेट करा तो वो बैठता है 6.25 लाख रुपया। तो 6.25 लाख रुपए में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन फाइल करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम कहते हैं कि ठीक है सर आप ही डिबेट करो, फेस वैल्यू के लॉयर की जरूरत नहीं है, तो हमारी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या ना हो, हमारे वो 7 लाख रुपया सेम डे में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यानी कि उससे पहले उनको 50% देना पड़ेगा, जब ये डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल करेंगे तो उससे पहला पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ये है प्रोसेस है। अगर एक दिन का होता है तो डीओ के पास सफिशिएंट फंड है। इस समय पर हमारे पास अकाउंट्स के अंदर 8 लाख के आसपास पैसे हैं। 8 लाख भी अगर हम एग्जॉस्ट करते हैं, आगे की अगर हियरिंग मिलती है डेट, क्योंकि कोई भी कोर्ट केस 2-3 हियरिंग में नहीं होता, 4-5 हियरिंग होती है, तो अगर हम इन्हीं को ही लेके चलते हैं, आगे सीनियर कंसल्टेंट को नहीं लेके चलते, तो भी ये हमारा 20 लाख से कम में नहीं बैठता अगर हम ये 4.5 लाख वाले लॉयर के साथ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन था कि हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। नोटिस इशू होने का मतलब है 50% केस हम जीत गए, हमारा ग्रीवेंस जेन्युइन है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू कर दे। तो ये उस समय पर हमको सीनियर लॉयर को रखना पड़ेगा, चाहे वो 6 लाख वाला है, चाहे वो 10 लाख वाला है, चाहे उसका वो एक हमारे बजट पे रहे, हमारे पास फंड के ऊपर है। ऐसे ही जब फाइनल आर्गुमेंट होगा तब हम उसी सीनियर लॉयर को जजमेंट के टाइम पर रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले 4.5 लाख और ये वाले 7 लाख वाले तो रखने ही पड़ेंगे। एक तो है ये स्टेटस। अब हमारा बोर्ड के मेंबर से ये है, अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट में, उनकी कोई रिश्तेदार, कोई उनकी जानकार, उनके कोई फ्रेंड हैं और हमारे कम बजट में कर दें, तो ये एक सजेशन आप लोगों का तरफ से है। अभी तक हमारे पास क्या स्टेटस था, क्या फाइनेंशियली हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बोर्ड का मैटर था, इसलिए हमने आपकी ये मीटिंग बुलाई। अब कोई सवाल पूछना चाहे तो मेरे से पूछें, उसके बाद फिर मैं उनकी वीडियो जो हमारा मीटिंग हुआ था लॉयर की, वो मैं प्ले करूंगा। अब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद फिर हम फाइनल जो भी हमें ओपिनियन देंगे उसके हिसाब से जाएंगे। लेकिन सरप्राइज ये है लॉयर को कि तुम्हारा प्रोफेशन बड़ा नॉवल